السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سم آف دا بیسٹ اینڈ یونیک پروفیشنز فار کیریئر۔ اس سے پہلے کہ میں مین موضوع پہ جاؤں، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ میری نظر سے ایک لطیفہ گزرا، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے معاشرے، اور بالکل فیکچوئل چیز ہے، ہمارے معاشرے کی کریم ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتی ہے، اور جو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پاتے وہ سی ایس ایس کی تیاری کر کے، سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر کر کے وہ سی ایس ایس آفیسر بن جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز اور انجینئر کو وہ رول کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نہ ڈاکٹر بن پاتے ہیں، نہ انجینئر بن پاتے ہیں، اور نہ سی ایس ایس آفیسر بن پاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سیاست میں آتے ہیں، اور پھر سیاستدان بن کے وہ ان دونوں کو رول کرتے ہیں، یعنی کہ سی ایس ایس آفیسرز کو بھی رول کرتے ہیں وہ، اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھی رول کرتے ہیں۔ بات تو سچ ہے، وہ پروین شاکر کی غزل کی طرح کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو سیاست کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سیاست کے اوپر بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کیچڑ میں پتھر پھینکنا۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ تو I'll let you know some of the best and unique professions for career today۔ تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سی ایس ایس۔ سی ایس ایس اسٹینڈس فار سینٹرل سپیریئر سروسز۔ سینٹرل سپیریئر سروسز۔ They always occupy the key posts everywhere, wherever they are appointed in the society. They have to run the bureaucratic and administrative setup at every department. If you want to go for CSS, you must be talented, creative, and sharp-minded, having vast study or knowledge and excellent writing skills to qualify the CSS exam. You must have a full command over your subjects. Now, what is the criteria for CSS? The criteria for CSS is graduation, BA BSc۔ لیکن یاد رکھیے گا، BA BSc والے سی ایس ایس شاذ و نادر ہی کلیئر کر پاتے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے۔ ہاں، دا سوٹیبل کوالیفیکیشن فار سی ایس ایس از پوسٹ گریجویشن۔ BA BSc والے اپیئر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا نالج اتنا نہیں ہوتا ہے جس طرح کا، یعنی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں یا ہمارے ریجنز میں، تو یہ گریجویشن والے جو ہے شاذ و نادر ہی کلیئر کر پاتے ہوں گے۔ تو اس لیے I'll suggest the suitable qualification for CSS is post graduation۔ تو پوسٹ گریجویشن کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو نالج ہے وہ انہانس کریں، اس میں اضافہ کریں۔ صرف بکش نالج ہونے سے آپ سی ایس ایس کلیئر نہیں کر سکو گے۔ اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو اس میں سی ایس ایس میں 12 پیپر کلیئر کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے 6 جو ہے یہ کمپلسری ہوتے ہیں، اور 6 جو ہے وہ آپشنل ہوتے ہیں۔ جو کمپلسری پیپرز ہوتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ آپ کا سبجیکٹ بھلے جون سا بھی ہو، وہ جو کمپلسری پیپر ہے وہ ہر کسی کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور جو باقی رہ گئے آپشنل، تو وہ آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے گروپ کو آپ چوز کر سکتے ہو۔ تو پھر آپ یعنی کہ اس گروپ کا انتخاب کر کے آپ یعنی کہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یعنی کہ پیپر آپ جو ہے وہ آپشنل رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہ جو کمپلسری پیپر ہیں یہ ہر کسی کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو پہلا پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انگلش ایسیز۔ انگلش ایسیز جو ہے وہ
2500 से 3500 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए आपका, यानी कि आपका जो ऐसे है, ऐसे राइटिंग 100 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा। जो 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको एक ही ऐसे लिखना होता है और तकरीबन आपको 10 टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से एनी वन 10 में से एनी वन पे आपको 2500 से लेकर 3500 तक जो है इंप्रेसिव किस्म का ऐसे लिखना होता है। और याद रखें, मैं यहाँ पर ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वाला पेपर है, ये आपका जो है ग्रेड बनाने में, आपके यानी कि मार्क्स जो है वो बढ़ाने में मददगार होता है। तो इसलिए इसकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और याद रखें, CSS में जाने से पहले आप जो है, आपकी इंग्लिश जो है, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपकी यू मस्ट ट्राई टू एनहांस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एट इंग्लिश। याद रखिएगा, आपकी अंग्रेज़ी जो है वो बहुत ही आला मायार की होनी चाहिए अगर आप CSS में जाना चाहते हैं तो। और उसके बाद फिर इसका दूसरा पेपर जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो है तकरीबन मालूमात आमा की किताबें पढ़ती हैं। इसके अलावा टीवी टॉक शोज़ देखने होते हैं, टीवी के मुख्तलिफ आपको प्रोग्राम देखने होते हैं, और न्यूज़पेपर का आपको मुतालिया करना होता है ताकि आपके पास जो है मालूमात का एक ख़जाना आ जाए। उसके बाद आप जाकर कहीं इस काबिल होंगे कि आप इस पेपर को जो है अच्छे मार्क्स में क्लियर कर सकें। और इसमें क्या होता है, 20 मार्क्स वो MCQs के होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन MCQs होते हैं, और बाकी जो है 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सब्जेक्टिव, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और वो सब्जेक्टिव होते हैं जो आपको लिखना होता है। इसी तरह से उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आता है वो आता है पाकिस्तान अफेयर्स। दोबारा से आपको यानी कि किताबों के अलावा जो है फिर आपको न्यूज़पेपर का मुतालिया करना होता है, फिर आपको टीवी टॉक शोज़ और टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने होते हैं और न्यूज़पेपर को कंगालना होता है। और यहाँ पर भी आपके पास मालूमात का ख़जाना होना चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगेन उसी तरह से इसका भी वही क्राइटेरिया है, 20 MCQs होते हैं इसमें और जो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं, और बाकी रह गए यानी कि भी 80 मार्क्स वो आपको जो है 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 6 आपको 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि भी करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका आता है इस्लामिक स्टडीज़ का। इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज़ का भी आपके पास जो है जो अच्छा इल्म होना चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए, और क्राइटेरिया वही है, 20 MCQs होते हैं और 4 क्वेश्चन करने होते हैं आपको सब्जेक्टिव लेवल पे आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, और जो 20 मार्क्स का एक होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पेपर है जनरल साइंसेस एंड एबिलिटीज़, और इसके लिए भी बाकायदा आपको जो है रेलिवेंट यानी कि भी किताब बुक्स का मुतालिया करना होता है, और इसके बारे में आपके पास आपके पास काफ़ी मालूमात होनी चाहिए। तो यानी कि और फिर ये तो है कंपल्सरी, और फिर आपके जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो ऑप्शनल ग्रुप आपने चूज़ किया होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, वहाँ भी आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए अगर आप CSS में जाना चाहते हैं तो। अब एज CSS ऑफिसर यू कैन एंजॉय अ यूनिक स्टेटस थ्रू आउट द लाइफ विद हाईली हैंडसम सैलरी एंड फैसिलिटीज़। अब इनकी सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होती है, इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एवरी ईयर थ्रू आउट द कंट्री। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू आउट द कंट्री ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसके लिए बाकायदा एडवर्टाइज जो है वो मुल्क के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में आती है, और जब आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है और फिर जाकर नेक्स्ट ईयर फेब में जाकर फिर कहीं इसका एग्ज़ाम होता है, और 6 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो देन यू एंजॉय अ यूनिक स्टेटस थ्रू आउट द लाइफ विद हाईली हैंडसम सैलरी एंड फैसिलिटीज़। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डिफेंस फोर्सेस।
डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों यानी कि भी फोर्सेस आती हैं। तो लेकिन आज मैं जो है एयर फोर्स के बारे में, क्योंकि एयर फोर्स आई माई सेल्फ आल्सो रिटायर्ड फ्राम पाकिस्तान एयर फोर्स, तो एयर फोर्स से जो है मुझे दिली लगाव है, तो इसलिए मैं एयर फोर्स को ही डिस्कस करूँगा आज के टॉपिक में। तो एयर फोर्स में आफ्टर इंटर आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर के बाद जो है यानी कि आपके पास यानी कि दो यानी कि भी चॉइस होंगे, आप एज अ जीडीपी, जिसको फाइटर पायलट आप कहते हैं, जनरल ड्यूटी पायलट, तो जनरल ड्यूटी पायलट के लिए भी आप जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर जीडीपी। और आप एरोनॉटिकल इंजीनियर, अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ आपने इंटर किया है यानी कि विद साइंस ग्रुप, तो आप जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन सेंटर में आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है, बाकायदा मेडिकल वगैरह जो है आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं, तो फिर आपको ISSB क्लियर करना होता है। ये ISSB जो है ये थोड़ा सा मुश्किल मरला होता है, लेकिन इसके लिए बाकायदा से बुक्स वगैरह जो है वो मार्केट्स में अवेलेबल हैं कि किस तरह वो कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप आराम से उसको भी, इफ़ यू आर अ टैलेंटेड एंड एक्टिव एंड स्मार्ट शार्प माइंडेड पर्सन, यू कैन क्लियर इट ईजीली। तो उसके बाद जो है अगर आप एज अ जीडी पायलट सेलेक्ट होते हो, फाइटर पायलट सेलेक्ट होते हो, तो आपको FSC के लिए सरगोदा कॉलेज में आपको भिजवाया जाएगा। वहाँ पर आपकी FSC करवाई जाएगी और साथ में आपको फिज़िकल फिट भी रखा जाएगा। उसके बाद फिर जो फाइनल ईयर है, जो थर्ड ईयर होगा आपका, वो फिर आपको रसालपुर एकेडमी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। वहाँ पर फिर आप जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको जो है इनिशियल रैंक जो है वो पायलट ऑफिसर का दे दिया जाएगा, और आप जो है एक यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ जो है आप अपना यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आप फाइटर एयरक्राफ्ट जो है आप उड़ाना शुरू कर देते हो। इनिशियल स्टेज पे जो है ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो दिया जाता है, तो वो भी ट्रेनर के साथ होता है, लेकिन जब आप एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप इंडिपेंडेंटली जो है अपना एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जो है आप उड़ाना शुरू कर देते हो। और एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए जो है आपको डायरेक्ट रसालपुर एकेडमी में भिजवाया जाता है। वहाँ पर आपको BE करवाई जाती है, तो BE इन एरोनॉटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर आप जो है फुल फ्लैज आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर जो है तकरीबन ये 3.5 साल का यानी कि पीरियड होता है, और आपको जो इनिशियल रैंक दिया जाएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। और इसके बाद जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो कैंडिडेट होते हैं, दे कैन गो फॉर अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, ADWC स्टैंड्स फॉर एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, डेटको ड्यूटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, डेटको, सेटको एट्सेट्रा। और इसके अलावा जो है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप एज एन एजुकेशन ऑफिसर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेडिकल ऑफिसर जो है आफ्टर MBBS भी एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप एज एन एयरफोर्स। और याद रखें ये जो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इनका MBBS नहीं होता है, इनका ISSB नहीं होता है, ISSB इनका नहीं होता है। इनकी जो सिलेक्शन होती है वो PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर, वहीं पर ही, और फिर फाइनल इनका जो बोर्ड बैठता है वो इनकी सिलेक्शन करता है इंटरव्यू में। तो अगर ये अपने इनिशियल टेस्ट वगैरह जो है और मेडिकल वगैरह क्लियर कर जाते हैं, तो एज एन एयर फोर्स ऑफिसर यू कैन एंजॉय अ यूनिक स्टेटस विद हाईली हैंडसम सैलरी एंड फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप तकरीबन हर साल ही अखबार में एडवर्टीज़मेंट आती है, आप वो चेक कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाकर PAF की वेबसाइट पर जाकर भी आप जो है मालूमात ले सकते हैं, और तकरीबन हर साल ही इनकी सिलेक्शन होती है। तो इसी तरह से आप, अगर आपका इंटरेस्ट नेवी में जाने के लिए है या आर्मी में जाने के लिए है, तो आप इसी तरह से वेबसाइट पे जाके उसके बारे में भी मालूमात लेकर आप यू कैन गो फॉर डैट। आर्मी में भी जा सकते हैं, आप नेवी में भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शोबा है हमारा वो है TV एंकर्स और एनालिस्ट। TV एंकर्स
You must have a degree in journalism with impressive personality and speaking power, active and sharp mind and engagement ability. याद रखिएगा, here you can enjoy a glamorous life with highly handsome salary and facilities. इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए। बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स, वकीला, बैरिस्टर्स और दूसरे शोबों से लोग इस जानब आ रहे हैं। कुछ तो वजह होगी ना इसकी। बेचारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की डिग्री के हामिल अफराद कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जो मैंने आज आपको कैरियर के बारे में काउंसलिंग दी है। आप खुद भी इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, खुद भी इसका मुवाजना कर सकते हैं कि ये तो लाइमलाइट के लोग होते हैं, पर्टिकुलरली ये जो यानी कि भी टीवी एंकर्स और एनालिस्ट जो होते हैं और तकरीबन वेल नोन होते हैं एवरीवेयर। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि है, याद रखिएगा कि आप काम हमेशा वो कीजिए जिस जानिब आपका रुझान हो, जिस जानिब आपका यानी कि आपका जहन जाता हो। मजबूरी के तहत किया हुआ काम ना तो वो अच्छी तरह से परफॉर्म हो सकता है, ना उसमें आप अपना नाम बना सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है बिज़नेस। तो बिज़नेस में याद रख, अगर आपके पास इतना सरमाया है कि आप बड़े पैमाने पर कोई अच्छा कारोबार सेटअप कर सकते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर डैट। आप क्या कर सकते हैं? आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं। आप शोरूम खोल सकते हैं कोई गाड़ियों वगैरह का, यानी साफ़ सुथरा काम है। आपको तो कुछ भी नहीं करना होता, जो भी करना होता है वो ब्रोकर्स ने करना होता है। आपने तो आराम से ऑफिस में बैठना होता है और बाकी अपना कंप्यूटर के ऊपर जो है अपना या लैपटॉप के ऊपर जो है अपने यानी कि बैलेंस या हिसाब किताब जो है वो चेक करना होता है। उसके बाद आप रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो आप सेटअप कर सकते हैं। आप इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है आजकल के दौर में। इसके अलावा आप स्टॉक ब्रोकर्स बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद सकते हैं और इसमें भी आप अच्छा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है मुख्तलिफ़ तरह के कारोबार हैं, और मिसाल के तौर पे आप ग्रेन है, फर्टिलाइज़र्स है, मेडिसन है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि अगर नहीं समझ में आता कुछ भी, तो आप जो है यानी कि पब्लिक लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे आप कॉन्ट्रैक्टरशिप भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी जो प्रोफेशन है वो बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो, और मोर ओवर अगर आपके पास कैलिबर है तो आप कहीं भी किसी भी शोबे में किसी भी फील्ड में आप अपना नाम और फेम कमा सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।